Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi and I'm again with you to share the lecture number 3 for computer science on the wonderful platform of PW. In the last lecture we were discuss about the topic like fundamental of computer, software, hardware, and the topics like we were discuss like operating system. Now in the current topic or current section we will discuss about the topic like what is the number system and what are the role played by the number system in our system or our computer. So first of all I have to share something like whenever you type on your system like alphabets, numbers, it is not understood by the CPU directly. Okay, because the CPU understand the binary and we have to convert our data according to the system understandable format. That is performed by the different type of language translators like interpreter, compiler. But we have to know about that how do the translator can translate your data into the machine language. For that we have the topic number system. uh, in the number system we have different mechanisms that can convert your basic requirement or basic type of data into the different formats based on the system requirement. Maybe your numeric data have to translate into the binary, maybe your data have to translate in some different format of complements. So all these can be covered into the topic that is number system. So let's start the topic. In the number system, we have the first section. Uh, we have first topic about the number system is that what is the number system and what are the role of number system in the computer. So we will discuss different formations of number system like when we type some letter or words in our computer, then our computer which we type data can be translated into the CPU understandable format. Then CPU again accept the data and translate into the users अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि लाइक आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लाइक आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में टाइप किया, लाइक आप तो A+B मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंप्यूटर में सॉल्व करवाना चाहते हैं. तो जब भी आप एक अल्फाबेट A एक अल्फाबेट B टाइप कर रहे हैं तो सीपीयू पहले उसे अंडरस्टैंड करेगा खुद के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. देन आपने जो भी टास्क या आपने जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया होगा उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, उस पर कैलकुलेशन करेगा. वो अभी सब कैलकुलेशन जो हो रही है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो रही है. देन जो भी फाइनल आंसर मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में निकलता होगा उसे आपका सीपीयू अगेन ट्रांसलेट करेगा अकॉर्डिंग टू द यूजर्स फॉर्मेट और आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करेगा. सो व्हाट इज द नंबर सिस्टम? Number system is a mechanism or concept that can translate your data into the system understandable format. Is that clear? क्या होते हैं नंबर सिस्टम? आपको समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम आप लोगों के पास एक फॉर्मेशन है. नंबर सिस्टम आप लोगों के लिए एक मेथड है जो कि आपके डेटा को सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. After the processing by the CPU, the data again converted into the understandable format. That is the number system. मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में the number when we type some letter or word the computer translate them into the number as computer can understand the only number. A computer can understand the position number system where we only few symbols called digits or those symbol known as representations. Like मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप लोगों के पास like स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z एंड वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड पर. बट सीपीयू को ये सारी चीजें नहीं समझ में आती. सीपीयू को कुछ फॉर्मेट्स ऑफ नंबर सिस्टम ही समझ में आते हैं लाइक बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल. ये सारे सिस्टम आपका सीपीयू समझता है. तो हम लोगों के पास जो टॉपिक है जो अभी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम का रोल क्या होता है कि व्हेनेवर यूजर जो भी कुछ टाइप करने वाला है डेटा उसको आपका सिस्टम कैसे समझेगा
और कैलकुलेशन करने के बाद वो डेटा वापस आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होगा. दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम. इज दैट क्लियर? नंबर सिस्टम जो होते हैं वो हम लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल हैं. उनमें से आज मैं आप लोगों को 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स और उनके कन्वर्जन के बारे में बताने वाला हूं. चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग. We have 4 types of number system and every number system have its rules, regulation and symbols. Like the number system which we have are the binary, octal, decimal and hexadecimal. ये कुछ फेमस नंबर सिस्टम्स हैं जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं और हम इनको कन्वर्ट करके भी इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं. तो हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं. उनमें से ये कुछ 4 ऐसे नंबर सिस्टम्स हैं जिनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए. लाइक बाइनरी के बारे में आप जानते हो. बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है वो टर्म जो जनरेट हुई है वो है बिट, बाइनरी डिजिट, बिट. एंड व्हाट इज द बिट? 0 1. दैट इज कॉल्ड a bit. And whenever you merge 2 bits 0 and 1 with each other, then we have a new concept known as binary. Is that clear? चलिए हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम? जो भी है मैं आपको समझा देता हूं. हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं यहां पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे. बाइनरी सबसे पहला नंबर सिस्टम था जो हम लोगों के पास इन्वेंट हुआ था. बिकॉज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, where the first generation of language is machine language. ठीक है, आपका जो सबसे पहले अगर कोई लैंग्वेज कंप्यूटर में इन्वेंट हुआ था दैट इज कॉल्ड ए बाइनरी. सबसे पहले आपका सीपीयू, और आज भी आपका सीपीयू क्या समझता है? बाइनरी. तो जो फर्स्ट हम लोगों के पास नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी, और ये सबसे पहला जनरेशन था नंबर सिस्टम का जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स अलाउड थी, दैट इज 0 और 1. तो हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही नंबर सिस्टम्स के टाइप अवेलेबल होते हैं और जो हम लोग यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं नंबर सिस्टम के जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे. बाइनरी में 2 डिजिट्स अलाउड होती हैं, 0 और 1. इसलिए बाइनरी को हमेशा किसके बेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? बेस 2 के थ्रू. तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पे याद रखना है हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है और जनरली जो नंबर सिस्टम का बेस होता है वो डिपेंड करता है उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोगों के पास 2 ही डिजिट्स अवेलेबल होती हैं, 0 एंड 1. सो इसका जो बेस रिप्रेजेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? 2 से. अकॉर्डिंग टू द बाइनरी नंबर सिस्टम जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लो के अंदर. वहां पे हम लोगों के पास जो फ्लो लाइंस बनती हैं वहां पे अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाइनरी. Apart from that, in the binary we have a concept bit. What is the bit? मैंने अभी हाल आप लोगों को बताया था. Whenever we discuss about the either 0 or a 1, so these single entity either 0 or 1 is called as a bit, and the collection of 4 bits is called a nibble. Is that clear? Nibble. Okay. तो जब whenever we connect, when we have 3 different terms. First of all, what is the bit? Smallest unit is bit. So what is the smallest unit? Bit. In the bit, we have either 0 or 1. Whenever we connect 4 bits with each other, then it is generate a new term that is nibble. Okay. What is the nibble? Collection of 4 bits. That is 1 0 1 0. Okay. 1 1 0 0 anything. ठीक है, but we have to use 4 bits. The collection of 4 bits is called as a nibble. Is that clear? And whenever we connect 8 bits with each other, then it is generate a new term byte. 1 byte equals to 8 bit, or we can set that 2 nibble. क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? जो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों के पास कौन कौन सी टर्म्स हैं यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पे समझनी है. बिट, एवरीवन
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिट का मतलब होता है बिट दैट इज आइदर 0 और 1, बट व्हेन वी कनेक्ट 4 बिट्स देन वी हैव 1 निबल. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं 1 बाइट, तो 1 बाइट is the collection of 2 different mechanisms. 1 byte is collection of 8 bits, or we can say that it is the collection of 2 nibbles. Is that clear? So how do we create a 1 byte? 1 byte is generated with 2 different concepts. The 1 byte is the collection of 8 bits, or we can say that 2 nibbles. Is that clear? Because in a single nibble we have 4 bits. Apart from that, what is the binary? The binary represented by 0 1. That's why we have base 2. After the binary we have a new number system that is called octal. In the octal we have the digits from 0 to 7. That's why its base represented by 8. That means every octal data having base 8 which we use in our conversion. Okay, so first 2 number systems which we discuss are binary, who have 2 different digits, supportable digits, that is 0 or 1, whose base represented by 2 because the quantity of digits are 2. In the octal number system we have 0 to 7, 8 digits. That's why its base represented by 8. Is that clear? Okay, the next number system which we have is decimal. In the decimal number system we can consider the digit from 0 to 9. In the decimal number system हम लोगों के पास कितनी डिजिट्स अवेलेबल होती हैं? फ्रॉम 0 to 9. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं आप लोगों के पास? यहां पर 10. तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका बेस कितना होना है. अभी इसका बेस होगा 10. ओके, तो आप जब भी बात करना चाहते हैं नंबर सिस्टम और वो भी डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस रिप्रेजेंट होता है वो कहां से रिप्रेजेंट होगा? बेस रिप्रेजेंट होगा आप लोगों के पास 10 से. इज दैट क्लियर? क्यों है इसका बेस 10? उसका रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों के पास डिजिट कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से, और कहां तक होती हैं? 9 तक. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी आप लोगों के पास? 10. तो इसका बेस किससे रिप्रेजेंट होता है? 10 से. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अभी तक आपने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े उनके सबके अपने कुछ यूजेस थे. लाइक सबसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर सिस्टम इज बाइनरी, बिकॉज इन द बाइनरी यू कांट यूज एनी अदर डिजिट. वी हैव टू जस्ट 2 ऑप्शन, आइदर 0 और 1, 1 0, एंड वी डोंट use any type of number or characters. So it is much more complicated to use it or work with it. After that we have a new number system that is octal. The octal provide us the permission that we can use now further different numbers which are more comfortable with us to use these number system in some different process. Now we are capable to use the digit from 0 to 7. But the problem with octal is that suppose I have requirement that I have to use some number or some data where the digit may be higher than 8. Then in that case we are not able to use the octal, because octal का जो लिमिट है वो कितना है? 0 to 7. अब अगर आपको कोई डिजिट मेंटेन करना है, कोई नंबर मेंटेन करना है जो कि 8 है या 7 से ज्यादा है, तो octal इसको सपोर्ट नहीं करेगा. फिर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला, हम लोगों ने नया टॉपिक डिस्कस किया. नया टॉपिक आप लोगों के पास जो इन्वेंट हुआ उसे क्या बोला आप लोगों ने? डेसिमल. डेसिमल नंबर सिस्टम जो था आप लोगों के पास, उसका आप लोगों को क्या एडवांटेज मिला? नाउ यू आर एबल टू वर्क विद डिजिट्स दैट हैव 0 to 9. मतलब यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स. बट अगेन वी हैव ए प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एबल टू यूज अल्फाबेट इन द डेसिमल. तो डेसिमल में हम लोग कोई अल्फाबेट्स के रिगार्डिंग बात नहीं कर सकते थे. अब एक नया नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम का एक नया जनरेशन वी हैव, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव 2 different portions. We can maintain digits from 0 to 9,
ओके आप कितने डिजिट्स मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, आप लोग 0 to 9 डिजिट्स मेंटेन कर सकते हैं, जिनका बेस क्या होगा 0 to 9 तक की जो डिजिट्स आप मेंटेन करेंगे, टोटल कितनी डिजिट्स मेंटेन करेंगे आप 10। और कितने अल्फाबेट्स आपको यूज करने की परमिशन यहां पे मिल रही है 6। तो टोटल इसमें कितने डेटा मेंटेन करने की आपको परमिशन मिली है 16। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कहां से रिप्रेजेंट होगा 16 से। सो द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल इज ऑलवेज हैव 16 एज ए वैल्यू एज ए बेस। सो हम लोगों के पास 0 to 9 तो वैल्यूज यहां पे कंसिडरेबल हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are the 10 digits and alphabets are A B C D E F. These are 6 alphabet. Total of these is 16. So हम लोग यहां पर मैक्सिमम जो अल्फाबेट यूज कर सकते हैं वो कहां तक यूज कर सकते हैं F तक। But we have 4 major number systems that we have to use in our numericals. Is that clear? After that अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये होगा कि E और F के आगे के नंबर सिस्टम्स कहां से लाएंगे। बिल्कुल हम लोगों के पास इसके बाद नंबर सिस्टम के नए नए मैथडोलॉजी डेवलप्ड हुई, लाइक BCD, EBCDIC, ASCII, EICC। दैट मीन बहुत सारे नंबर सिस्टम्स के जनरेशन हम लोगों ने लिए, जिनके थ्रू हम अलग अलग तरह के कन्वर्जन और अलग अलग तरह के डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों के पास नंबर सिस्टम्स के 4 टाइप्स हैं। बाइनरी हु हैव द बेस 2 because we have 2 digits, octal who have 0 to 7 total 8 digits, that's why the base is represented by the 8, and decimal, in the decimal we have digits from 0 to 9, so its base represented by 10. After that we have hexadecimal where we can maintain 0 to 9 10 digits and A to F 6 alphabet, the total is 16. Is that clear? चलिए हम लोग नंबर सिस्टम को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैंने एक टेबल आप लोगों के सामने यहां पे शो की हुई है। अगर उसको समझना चाहते हैं तो मैं उसको आपको सब्स्टिट्यूट भी बता देता हूं कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए आप गौर कीजिएगा, हम लोगों ने यहां पे क्या करा, ऑक्टल में 0 से लेके 17, डेसिमल में 0 से लेके 15 और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक के डेटा रख दिए। अब आप लोगों ने यहां पे कमेंट किया या एरर दी कि ये तो गलत है, ऑक्टल में तो आपने 7 तक की डिजिट्स बोली थी। बिल्कुल मैंने 7 तक की डिजिट्स बोली हैं, बट आप यहां पे तो गौर कीजिए ना कि इनमें से किसी भी डिजिट में 7 से हायर वैल्यू है क्या। अगर मैं यार 2 डिजिट्स की बात कर रहा हूं तो इंडिविजुअली डिजिट्स में आप गौर कीजिए, 0 से 7, 7 के बाद 8 9 अवेलेबल नहीं था, 10 हम लोगों ने यूज किया, बट आप यहां पे गौर कीजिए 10 में 1 and 0, ठीक है, कहीं पे भी हम लोगों के पास क्या अवेलेबल नहीं है। यहां पर हम लोगों के पास 8 अवेलेबल नहीं है। 12 11 12 13 14 17 जो भी आप लोगों ने यहां पे नंबर कंसीडर किया है वो भी अगेन आप लोगों के पास 0 से लेके 7 के बीच में ही तो है, सेकंड डिजिट। सो दीज आर द वैलिड। इज दैट क्लियर? हां, अगर आप यहां पे लिखते 19 18 वो वैलिड नहीं था, क्योंकि नंबर जो भी आप यूज करने वाले हो उसके किसी भी डिजिट में ऑक्टल का लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से हमने डेसिमल में भी डिजिट्स लिखी 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज, उसके बाद 10 11 13 14 15 तक। अब आप बोलोगे इससे आगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी एक आपको सिंटेक्स बताने वाला हूं, ठीक है। इस तरह से आपने हेक्साडेसिमल भी यहां पे मेंशन किया हुआ है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल एक कंसेप्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जब अभी हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो कभी कभी हम लोगों के पास शॉर्टकट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो वी आर डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट्स टू कन्वर्ट ए नंबर सिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्मेट। लाइक अगर आपसे कोई बोलता है, समवन आपसे पूछता है कि आप लोग मुझे 1 का बाइनरी बताओ, तो आप डायरेक्टली इस टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं किस तरह से। तो ये लिखने में कोई डाउट आई एम श्योर दैट आप लोगों में से किसी को भी नहीं होगा। 0 से लेके
17 तक, मतलब टोटल हम किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा रोल है। आप गौर कीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज लिखी, उसके बाद A B C D E F। तो सबसे पहले हमने हेक्साडेसिमल राइट डाउन किया। अब जहां तक हेक्साडेसिमल है हम लोग यहाँ पे वही डिजिट्स यूज करेंगे, 0 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब आप ऑक्टल लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑक्टल लिख रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे हम लोगों ने किन किन को इग्नोर किया है, यहाँ पे हम लोगों ने 8 को इग्नोर किया है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नंबर्स को इग्नोर किया है, ठीक है, लाइक 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, बाकी फिर आपने 7 से इस चीज को क्या कर दिया, कंटिन्यू यूज करना चालू कर दिया है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किस तरह से डिजाइन हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों के पास बाइनरी में 4 डिजिट्स हैं। बाइनरी में हम लोगों ने कितनी डिजिट यूज करी हुई है, 4 डिजिट, क्योंकि हम लोग यहां पर जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाइनरी में कितनी डिजिट्स होती हैं, 2, तो 2 डिजिट मतलब आप मैक्सिमम कितने का पेयर बना रहे हो, अभी यहां पर 4 का पेयर बना रहे हो। आप देखिएगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे आपने 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1 लिखना है। दिख रहा होगा आप लोगों को, कितने बार आप लोगों ने 0 लिखा हुआ है, 8 टाइम्स 0, और आपने 8 टाइम क्या लिखा हुआ है, 1, 8 टाइम 0, 8 टाइम 1। नेक्स्ट आप लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट आप 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 लिखने वाले हैं। गौर कीजिएगा, आप यहां पर क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने, दिख रहा है आप लोगों को, मैं आप लोगों को फिर से जनरेट करके बता देता हूं। यहां पे हम लोग एक बार वापस से इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से आप लोगों के पास इन्वेंट हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, अगर मैं इसको वापस से आप लोगों के लिए क्रिएट करके बताता हूं, आप लोग गौर से देखिएगा किस तरह से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, 8 टाइम 0 मेंशन किया, ठीक है, फिर 8 टाइम आपने यहां पे 1 को डिजाइन किया। अब सेकंड साइड पे आप क्या करेंगे, यहां पर 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 लिखेंगे, तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। अब आप क्या करेंगे, थर्ड डिजिट के लिए 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, दैट मीन 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। After that 1 time 0, 1 time 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। इज इट क्लियर? तो ये सबसे पहले हम लोगों को ये एक मैकेनिज्म याद रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जनरली आप लोगों के पास एक क्वेश्चन भी बनता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम, डिफाइन द डिफरेंट नंबर सिस्टम टेक्निक, डिफरेंट नंबर सिस्टम विद देयर सेट ऑफ डिजिट्स एंड देयर बेस। या आप लोगों के पास क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर सिस्टम, राइट डाउन ए टेबल दैट रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम बिटवीन ऑल द टाइप्स। ठीक है, तो आप लोगों के पास कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं, उन सारे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन का एक टेबल आप लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग बात करते हैं, अभी हम कन्वर्जन नेक्स्ट लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर अप करते हैं। अब आप लोग अभी वही वाली बात कर रहे थे कि आप लोगों के पास बाइनरी होगा जिसमें 2 डिजिट्स होंगी, ऑक्टल के अंदर आप लोगों के पास 8 डिजिट्स होंगी, डेसिमल में आप लोगों के पास कितनी डिजिट्स होंगी, 10, हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स होंगे आप लोगों के पास, 16। सो अब 16, और उसमें भी अल्फाबेट्स कितने अलाउड थे हेक्साडेसिमल में, आप लोगों के पास टोटल हेक्साडेसिमल में जो आप लोगों के पास जो डिजिट्स अलाउड थी वो थी 0 to 9, और अल्फाबेट्स कितने अलाउड थे, A to F। अब इसके आगे हम नया डेटा कहां से लेके आएंगे, F के आगे भी तो अल्फाबेट्स होते हैं, F के आगे भी तो हम लोगों के पास अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स होते हैं, F के आगे भी तो हम लोगों के पास बहुत सारे अल्फाबेट्स हुए। तो हम लोग बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, BCD। इट इज द टॉपिक इज कंप्यूटर कोड्स, दैट मीन हम लोगों के पास आफ्टर दीज 4 नंबर सिस्टम
we have some different techniques. Apart from these techniques, we have the first technique, BCD. Most important thing is its name, बाइनरी कोडेड डेसिमल. अब ये सबसे पुराना एक नंबर सिस्टम मैकेनिज्म है जो किस कंसेप्ट पे वर्क करता था, कोडिंग स्कीम पे वर्क करता था. और ये जनरली जो नंबर सिस्टम था बीसीडी, ये सिर्फ किस किस के लिए वर्क करता था, आपके डेटा को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा या फिर किसके वर्क में कन्वर्ट करेगा, ऑक्टेल में, बाइनरी में. तो जो बीसीडी नंबर था, नंबर सिस्टम था, जो इसके नेम में आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा, बीसीडी नंबर सिस्टम सिर्फ किनके लिए इन्वेंट हुआ था, बाइनरी और डेसिमल के लिए. जो बीसीडी नंबर सिस्टम था आप लोगों के पास, इसके अंदर टोटल आप 4 बिट का कोड बना सकते थे, 4 डिजिट का कोड बना सकते थे. क्यों बना सकते थे उसका रीजन भी बताता हूं मैं. बाइनरी जो होता है आप लोगों के पास, इसका बेस क्या होता है, 2. और डिजिट्स भी कितनी कंसीडर होती हैं हम लोगों के पास, बाइनरी के अंदर डिजिट्स भी कितनी होती हैं, 0 और 1, टोटल 2. तो यहां पे हम कितनी बिट का कोड बना सकते थे, 2's पावर 2 इक्वल्स टू 4. तो टोटल बीसीडी के अंदर जो आप एक कोड बनाओगे वो कितने डिजिट का बना सकते थे, 4 बिट का कोड आप लोग जनरेट कर सकते थे. प्रॉब्लम अगेन वही, बीसीडी भी तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स को कंसीडर कर रहा है, बाइनरी और डेसिमल. हम लोगों के पास अदर देन बहुत सारे और भी तो डेटा होते हैं. तो अब हम लोगों के पास क्या हुआ, बीसीडी जो आप लोगों के पास 4 और 6 बाइट का जो कोड जनरेट करता है. अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताता हूं. जब बीसीडी था 4 बिट का कोड बनाता था. अब हम लोगों के पास डिमांड आई कि नहीं, हम लोगों को क्या करना है, कुछ प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करने हैं. तो जो आपका 4 बिट का कोड था, इसमें आपने 2 बिट जो था वो यूज करा एज ए साइन बिट. साइन बिट का मतलब प्लस और माइनस. मतलब यहां पे जो आपको एडवांटेजेस अवेलेबल थे वो क्या थे, पहला कि आप 4 बिट का कोड बना सकते थे, बाइनरी और डेसिमल के लिए बात कर सकते थे, आपका कोड का जो लेंथ होगा वो 4 बिट का होगा, प्लस 2 बिट आप लोगों को एक्स्ट्रा अवेलेबल कराए थे, जो कि किसके लिए यूज करते थे आप, प्लस और माइनस के लिए. और इन 2 बिट को आप लोग क्या बोलते थे, साइन बिट. तो टोटल बीसीडी में आप लोगों के पास कितने बिट का कोड बनाने की परमिशन थी, 6 बिट का कोड आप लोग यहां पर बना सकते थे. इज दैट क्लियर? बट इन 6 बिट में भी हम सारे डेटा कवर नहीं कर सकते थे. तो बीसीडी का एक नया वर्जन आया जो कि क्या था, बीसीडी का एक्सटेंडेड फॉर्मेट था, जो इसका नाम है EBCDIC. आप नाम पे ध्यान दीजिएगा. बेसिकली क्या था ये आप लोगों के पास, EBCDIC आप लोगों के पास लिखा हुआ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. इज दैट क्लियर? नाम पे कंसंट्रेट करना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब बीसीडी का एक्सटेंडेड वर्जन जो इंटरचेंज कोड के लिए आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो. अब EBCDIC जो था उसका लेंथ हम लोगों ने कितना कर दिया, 6 बिट से 8 बिट. क्यों था, क्योंकि ये क्या था आप लोगों के पास, जो बीसीडी था उसका एक्सटेंडेड वर्जन था. तो जो बीसीडी था वो खुद 2 बिट का 6 बिट का था. जो बीसीडी था आप लोगों के पास वो कितने बिट का था, बीसीडी खुद 6 बिट का था. जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तो जो नया नंबर सिस्टम बनाओगे वो कितने बिट का बनाओगे आप, 8 बिट का. आपके पास अब 8 बिट का नंबर सिस्टम था, जहां पे आप लोग क्या करते थे, यहां पे एडिट 2 बिट यूज एज ए एडिशनल जोन बिट. जो आपका 6 बिट का कोड था आप उसको क्यों 8 बिट में कन्वर्ट करोगे. तो वो जो 8 बिट आप लोगों ने जोड़ी थी वो किसके लिए जोड़ी थी, 2 बिट का कोड आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो किस लिए यूज करा था आप लोगों ने, यहां पर जोन कोड के फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने यूज किया. अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही होगी, या ये प्रॉब्लम आप लोगों में भी फेस करोगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये 8 बिट और 6 बिट का क्या कंसेप्ट है. मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा. पहले हम लोगों के पास बीसीडी जो था वो कितने बिट के अंदर वर्क करता था, 6 बिट में. आपने क्या करा, इस 6 बिट के अंदर यहां पे लिखा हुआ है आप लोगों के पास, देखिएगा आप, एज ए 2 बिट
यूज एज ए एडिशनल जोन बिट एक्सपांडिंग द जोन बिट टू 4 बिट, द रिजल्टिंग कोड इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड। मतलब आप लोगों का जो 2 बिट का एक्सपेंशन था, जो आपका मैंने बताया था ना बीसीडी में आप लोगों के पास 2 बिट कितना था, ये जो 2 बिट आपने बीसीडी में यूज किया था वो आपने किसके लिए यूज किया था, 2 बिट आप लोगों ने यूज किए थे सिंबल्स के लिए। तो वो जो बीसीडी के आप लोगों के पास 4 + 2 बिट थे, आपने इन 2 बिट को और क्या करा, +2 और कर दिया। ठीक है, मतलब आपके पास जो 6 बिट का कोड था उसको आप लोगों ने कितना कर दिया, 8 बिट में। फिर से समझाता हूं आप लोगों को, एक बार आप ध्यान से दीजिएगा। यहां पर जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि बीसीडी जो था वहां पे आप लोगों के पास क्या था, बीसीडी में 4 बाइट + 2 बाइट किसके लिए थे, सिंबल्स के लिए। ये आप लोगों के पास था। आपने क्या करा, नया नंबर सिस्टम बनाने के लिए ये जो सिंबल वाला कोड था इसको आपने 2 + क्या कर दिया, 2। तो अब आप लोगों के पास इसका साइज क्या हो गया, 4। और ये जो 4 था ये किसके लिए यूज हो रहा है, आपका सिंबल के लिए। और ये जो 4 बाइट थे आपके, ये अभी भी आप लोगों ने यहां पे डेटा के लिए यूज किए हुए थे। तो टोटल आप लोगों के पास जो EBCDIC बना उसका लेंथ क्या था, 8 बिट। तो ये 8 बिट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बीसीडी 4 बिट का था, 2 बिट आपके पास किसके थे, सिंबल के। उस 2 बिट का जो सिंबल का साइज था EBCDIC में कितना कर दिया, 4 बिट। और 4 बिट आपके नंबर डेटा के थे ही सही। टोटल कितना हो गया आपका लेंथ, 8 बिट। 8 बिट था बट अभी भी प्रॉब्लम एज यूजुअल ही थी कि आप अभी भी सिर्फ बाइनरी और डेसिमल पे ही तो वर्क कर रहे थे। हम लोगों ने एक नया एक्सटेंडेड कंसेप्ट लॉन्च किया, इन्वेंट किया, दैट इज कॉल्ड ASCII। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। अच्छा, ये जो हम बिट पढ़ रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे बीसीडी की बात करें तो बीसीडी में आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 6 बिट। तो आप टोटल कितने डेटा जनरेट करा पाओगे, 2's पावर 6। इज इट क्लियर? कितना होता है 2's पावर 6 इज 64। यही होता है ना, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64। तो टोटल आप कितने यहां पे कॉम्बिनेशन बना सकते थे, 64 डेटा जनरेट कर पाओगे आप मैक्सिमम। फिर आया आपका अगला नंबर सिस्टम EBCDIC। इसकी जो लेंथ थी वो थी 8 बिट, दैट मीन 2's पावर 8। 2's पावर 8 का मतलब समझ सकते हो आप, मतलब 64 × 2 120 और × 2 दैट मीन्स आप यहां पे 256 कॉम्बिनेशन बना सकते थे। पर हम लोगों के पास अब एक नया नंबर सिस्टम आया जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे यूज हुआ। क्योंकि क्या होता था, बिकॉज हम लोगों के पास क्या था, इन एवरी कंट्री वी हैव डिफरेंट नंबर सिस्टम। सो व्हेनेवर वी यूज डिवाइस फ्रॉम अनदर कंट्री एंड यूज इन अवर कंट्री, देन वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर सिस्टम टेक्निक। कीबोर्ड अलग अलग तरह के हुआ करते थे। तो हम लोगों ने क्या करा, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजाइन करने की कोशिश करी जिससे कि सारे दुनिया भर के डिवाइसेस के कीपैड लगभग एक ही फॉर्मेशन में वर्क करें और हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके लिए एक नया नंबर सिस्टम इन्वेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम था ये आप लोगों के माइक्रो कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था और बहुत ज्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज होने वाला नंबर सिस्टम था, जो ऑल ओवर दुनिया भर के सारे सिस्टम को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे स्टैंड बाय करता था। नंबर सिस्टम जो ASCII था ये हम लोगों के पास 2 अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल था, ASCII 7 एंड ASCII 8। आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है। ASCII 7 जो नंबर सिस्टम था वहां पे आप सिर्फ 127 0 to 127 कॉम्बिनेशंस बना सकते थे, पर ASCII 8 के अंदर आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते थे, 10 to 255, दैट मीन टोटल 256। इज दैट क्लियर? आपको बता रखा है यहाँ पे ASCII 7 जो नंबर सिस्टम था आपका, ASCII 7 उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनते थे, 0 से 127। टोटल इनका कितना होता है, 128।
और जो आपका ASCII 8 नंबर सिस्टम था जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम कितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे? 0 to 255, दैट इज 256। इज इट क्लियर? सो हम लोगों के पास ये कुछ अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स हुआ करते थे जो हम लोग यूटिलाइज करते थे। अब हम लोग बात करते हैं इन नंबर सिस्टम्स को हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया, बट इसको यूटिलाइज हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन की रिगार्डिंग, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन किस तरह से यूज होंगे। सबसे पहले मैं आपको जो नंबर सिस्टम बता रहा हूं वो है हम लोगों के पास डेसिमल टू बाइनरी। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है जिसको अभी हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी उसके थ्रू भी हम रीड आउट कर सकते हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, इससे सिंपल तरीका नहीं है। वी हैव वेराइटीज ऑफ शॉर्टकट्स जहां पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली नंबर सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर एक पेपर में हम शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं या शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहे हैं और हम कंफ्यूजन में हैं, तो आप लोग एक प्योर मेथड यूज कीजिए जिसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे रो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम कन्वर्जन का जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, डेसिमल टू बाइनरी का जब आप कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको पता है डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10। बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2। तो आप इसको ऐसे समझिए, जब आप डेसिमल बेस से मतलब 10 बेस से 2 के बेस पे जाते हैं तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? जब आप बेस 10 से बेस 2 पे आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 2। जो कन्वर्जन आप यूज करेंगे, मैं रूल्स बता देता हूं आपको, यहां पर क्या करेंगे आप? डिवाइड बाय 2। सेकेंड थिंग, डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपको क्या मेंटेन करना है? यहां पे रिमाइंडर मेंटेन करना है, जो कि आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 और 1। और फाइनली जब आप यूज करेंगे तो आंसर हमेशा बॉटम टू टॉप आपको मेंशन करना है। तो आंसर ऑलवेज इन बॉटम टू टॉप, ठीक है। बट ये मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जहां पे कोई भी डेसिमल नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो आप 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। बट दीज आर द शॉर्टकट्स। बट अगर आप एक थ्योरेटिकल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आपको सपोज कोई बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल्स टू बाइनरी का कन्वर्जन दिया जा रहा है और वो अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल है, तो डेफिनेटली आपको कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है, आपको प्रॉपर ऑर्डर मेंशन करके बताना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज, आपके पास कोई क्वेश्चन यहां पे होता है जहां पे आपसे बोला जाता है कि आपको एक नंबर सिस्टम में नंबर है 9 जिसको आपको कन्वर्ट करना है इन द बाइनरी। आपको एक नंबर दिया जा रहा है 9 और आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बाइनरीज बेस इज 2। सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? तो डिवाइड द 9 बाय 2। इज इट क्लियर? कितनी बार डिवाइड होगा आपका 9? 2 से 4 टाइम डिवाइड होगा, द रिमाइंडर इज 1। आफ्टर दैट 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होता है? 2 टाइम, रिमाइंडर इज 0। 9 2 को डिवाइड करोगे आप, डिवाइड कितने टाइम होगा? 1 टाइम, रिमाइंडर इज 0। अब आप जानते हो ये जो 1 है ये हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग इज 1। और आप इसे किस तरह से मेंशन करेंगे? बॉटम से टॉप में ही मेंशन करेंगे। सो योर आंसर इज 1 0 0 1। दैट इज अवर बाइनरी ऑफ 9। सो 9 रिप्रेजेंट as 1 0 0 1 in the binary. Let's do some other questions. थोड़े जेरो से हम लेवल्स की बात करते हैं। लाइक आपको क्वेश्चन दिया गया 67 is in decimal and please calculate it into the binary. So how do you calculate these topic?
आई हैव द कंसेप्ट। मैं अभी आपको बाद में कुछ शॉर्टकट्स के बारे में भी बात करूंगा, बट पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 67 को जब आप डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिस्कशन होगा, किस तरह से डिवाइडेशन होगा, आप उसके बारे में बात कर लीजिए। 2 से डिवाइड करने वाले हैं। आप पूछ रहे होंगे कि 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहां जाना है, हायर से लोअर पे। आपको डेसिमल से कहां आना है, बाइनरी। तो डिवाइड भी आप किससे करेंगे, बाइनरी से करेंगे। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा, अगर हम 67 को डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, कितनी बार डिवाइड होगा, 33 टाइम्स डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? 33 होगा, बोलिए। चलिए 33 नहीं होगा, 3 टाइम तो डिवाइड ये हो गया। अब कितनी बार डिवाइड होगा आप लोगों के पास, 3 टाइम, रिमेनिंग इज 1। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 33। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, किसी के पास कोई आंसर? चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पे कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 33 को 2 से, तो कितनी बार डिवाइड होता है ये, 16 टाइम, रिमेनिंग इज 1। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 16 कितना डिवाइड होता है, 8 टाइम, रिमेनिंग 0। फिर डिवाइड करोगे आप, क्या होगा, 4 टाइम डिवाइड, रिमेनिंग 0। डिवाइड करेंगे आप 2 टाइम, रिमेनिंग 0। डिवाइड करेंगे आप यहां पे, क्या होगा, 1 0 और रिमेनिंग इज 1। आप लिखेंगे कैसे इसको, हमेशा बॉटम टू टॉप, 1 0 0 0 0 1 1, दैट इज इन बाइनरी। सो 67 is write down as 1 0 0 0 0 1 1 in the binary. Is that clear? तो टॉपिक टिपिकल नहीं है, आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये हुआ आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आपको रिपीट करना है, लाइक मुझे कंफर्मेशन करना है कि ये सारे नंबर सिस्टम जो आप कर रहे हैं क्रिएट, ये वैलिड है या नहीं है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम बाइनरी से डेसिमल पे जाते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको रिप्रेजेंट कराता हूं कि अगर आप बाइनरी से डेसिमल पे जाते हैं तो आप लोगों को क्या रूल्स फॉलो करने हैं। लाइक क्वेश्चन में आपसे बात करता हूं कि आपके पास कोई वैल्यू है 1010, दैट इज इन बाइनरी, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रिवर्सल, दैट मीन डेसिमल। कैसे सॉल्व करेंगे आप इस चीज को, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको यूज करने के लिए कि आपका मेथोडोलॉजी क्या होगा यहां पर। ठीक है, ये आपका बाइनरी में था और आपको क्या निकालना है, इसका डेसिमल। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करने वाले हैं यहां पर, वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन डिजिट्स को लिख दीजिए, 1 into 2, 0 into 2, 1 into 2 और 0 into 2। ये आपने यहां पे सबको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? विजिबिलिटी है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये ध्यान से देखिएगा जो अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1 into 2, 0 into 2, 1 into 2, 0 into 2। अब आप जो पावर स्टार्ट करेंगे वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लाएंगे, स्टार्टिंग तक। तो पावर स्टार्ट करना है फ्रॉम द 0 1 2 3। इज दैट क्लियर? कंफर्म कैसे करेंगे हम लोग अपने आंसर को, तो 2's पावर 3 इज 8। आप इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, आप लोगों के पास 0 से मल्टीप्लाई जो भी होता है वो क्या होता है आपका 0। 2's पावर 1 into 2 इज 2 एंड अगेन 0। तो आंसर क्या होगा आपका 10 इन द डेसिमल। आप चाहते हो नहीं मुझे कंफर्म करके बताओ गलत है या सही है, तो हम एक काम करते हैं, हम प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं, मैं आपको एक कंफर्मेशन बताता हूं। अभी यहां पे गौर कीजिएगा आप, 10 जो था आपका, इसका बाइनरी क्या है, 1 0 1 0। और अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करी, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली कैलकुलेशन किया है, वहां पे भी आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या था, 1 0 1 0, दैट इज 10। तो वो टेबल हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए हम और कॉम्प्लिकेशंस पे चलते हैं थोड़े से। लाइक आपका क्वेश्चन होता है 1 1 1 0 1। नाउ आपको फाइंड आउट करना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम ट्रिक,
सबसे पहले 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू. पावर स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड 0 1 2 3 4. याद रहे कितनी डिजिट्स हैं, लाइक यू हैव 5 डिजिट्स, सो ऑलवेज पावर एंड एट n-1, दैट इज 5 minus 1, दैट इज 4. कैलकुलेशन करेंगे अगर आप, क्या होगा इसका कैलकुलेशन, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. इज दैट क्लियर? सपोज याद होगा वैसे कि सपोज ए नंबर हैविंग पावर 1 और वी कैन से दैट 0, सो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. यही होता है आप लोगों के पास. सो क्या होगा आप लोगों के पास, किसी के भी पावर 0 होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के. तो क्या होगा आप लोगों के पास, ठीक है, आपके पास क्या होगा इसका आंसर, 16 प्लस 4 20 प्लस 8 प्लस 1 29 इज इन डेसिमल. इज दैट क्लियर? सो ये हम लोगों के पास कन्वर्जेंस होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कॉम्प्लिकेशंस कब होता है, जब आप थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स पे आते हैं. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम लोग यहां पर कन्वर्जन के ही रिगार्डिंग, जिसमें हम थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड वे में समझने की कोशिश करते हैं. लाइक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर टिपिकल दे दिया जाए. लाइक आपको क्वेश्चन दिया जाए यहां पे कि आपको 25.14 is in decimal and now you have to find out its equivalent in binary. अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो टेक्निक है, मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पे नंबर थोड़ा सा चेंज करता हूं जो हम लोगों के लिए इजी होगा. मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं, सपोज 15. अब आपको कन्वर्जन करना है, तो यहां पे सबसे पहले आप दो पार्टीशन कर लीजिए. दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा. पहला 25 को आप डिवाइड करके सॉर्ट आउट करेंगे. 2 से डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड होगा, 2 टाइम. डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करोगे, डिवाइड, ठीक है, ये तो सॉर्ट आउट हो गया. अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये होगा मल्टीप्लाई. आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आएगा 0.32. अब 0.30. 0.30 को आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.60. 0.60 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 1.20. 0.20 को अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या होगा आप लोगों के पास, 0.2 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी है, ये तो हम लोगों का आंसर है. तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 0.40. तो हम लोग जो आंसर कंसीडर करेंगे वो बॉटम टू टॉप में कंसीडर करेंगे, और आंसर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग यहां पर, 0.100. सो कंप्लीट आंसर इज 11001 पॉइंट, दैट इज इन बाइनरी. सो हम लोगों के पास यहाँ पे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मैथडोलॉजी है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं. उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं. डेसिमल टू ऑक्टल पे आप कैसे मूव करेंगे. कोई नंबर अगर आपको दे दिया जाए डेसिमल टू ऑक्टल के लिए, लाइक आपको एक नंबर दिया जाता है 64, जो कि है आपका डेसिमल में, और आपको क्या निकालना है इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल. क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करना है आप लोगों को. कंफर्मेशन अभी हम कर लेते हैं इसका वापस से, गलत और सही अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. 64 को आप डिवाइड करेंगे 8 से. कितने बार डिवाइड होगा 64, 8 से, 8 टाइम डिवाइड होगा 0. 8 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आप लोगों के पास, 1 टाइम डिवाइड होगा 0 और 1. आउटपुट आप लोगों के पास जो यहां पे जनरेट होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास, यहां पर अगर मैं 64 को यहां पे सॉर्ट आउट करता हूं तो आपका जो आंसर जनरेट होगा वो क्या होगा आपका 100.
बट क्या ये सही है, क्या हम कंफर्म करें? तो मैं आपको अभी हम लोग पता करेंगे कि हम कहां गलत है और कहां सही है। मैं आपको कुछ मिस्टेक्स करके भी बताने वाला हूं यहां पर, ताकि आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहां आप किस चीजों पर लैक करने वाले हो। देखें क्या ये गलत है या सही है, हम लोग कंफर्म करते हैं। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं, तो आप लोगों के पास जो आंसर था उसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं अगेन डेसिमल में। तो मल्टीप्लाई होना चाहिए इसका मतलब, तो 1 इंटू 8, 0 इंटू 8, 0 इंटू 8, पावर 0 1 2, पावर इज 64, 0 0, आंसर इज 64। एंड किसमें है ये आंसर आपका? अगेन डेसिमल में। तो कन्वर्जन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मेथड्स कैसे याद किए जाएंगे। और छोड़िए इन सब चीजों को, मैं आपको इनका एक शॉर्टकट बताता हूं जिसमें हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहां पर कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, ठीक है। पहले ऑक्टल का बेस क्या होता है वो बताइए आप लोग। ऑक्टल का बेस होता क्या है? ऑक्टल का बेस होता है आप लोगों के पास 8 जो नंबर सिस्टम है हम लोगों के पास, मैं आपको फिर से समझाता हूं नंबर सिस्टम का कंसेप्ट, कि आप लोगों के पास जो नंबर सिस्टम होता है वो है 0 1 2 4 6 8। तो हम लोग अगर बात करें आपका जो नंबर सिस्टम है वो किस तरह से डिजाइन हो रहा होगा उसके बारे में, तो ऑक्टल का जो नंबर सिस्टम है उसको मेजर करने के लिए हम यहां पे जो टेक्निक यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे ऑक्टल के लिए? 4 2 1। आप बोलेंगे 4 2 1 ही क्यों? 4 2 1 ही क्यों यूज किया है? क्योंकि आप इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करके निकाल रहे हैं? 4 + 2 6, 6 + 1 7। और ऑक्टल में कितनी मैक्सिमम डिजिट्स अलाउड होती हैं? 0 से 7। तो इनका कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहां पर आंसर, जो कि होगा आपका बिटवीन 0 to 7। आपके दिमाग में आएगा कि हम यहां पे बहुत सारे नंबर से उनमें से और क्यों नहीं लिए। देखिए 0 आप ले नहीं सकते, 0 इज नॉट कंसिडर एज ए नंबर। 1 आपने ले लिया, 2 आपने ले लिया, 4 आपने ले लिया। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? मैक्सिमम आंसर क्या आएगा आपका? 7। और हमारे ऑक्टल में भी कितने डिजिट्स होती हैं? 7। अब आप बोलते हो नहीं 6 भी ले लो। 6 अगर मैं यहां पे इन्वॉल्व कर लेता हूं, लाइक आपने ले लिया कि 6 + 1 ये भी तो 7 होता है, तो 6 + 1 अगर आपने 7 ले लिया तो आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी? 2। तो नंबर ऑफ पेयर बनाने के ऑप्शंस भी तो कम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कितनी डिजिट्स ली हैं? 3, ताकि एटलीस्ट हम 3 डिफरेंट अलग अलग पेयर्स के अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल पाए, अलग अलग आंसर्स को जनरेट कर पाए। तो हम लोगों ने यहां पे 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8 ऑक्टल की लिमिट से बाहर है, पहला। 0 क्यों नहीं लिया? 0 को हम कंसीडर नहीं करने वाले आंसर के तौर पर। अब आपके पास बचता है 1 2 4। अगर आपने 1 2 4 तो ले ही लिया है, आप बोलते हो कि 1 + 6 क्यों नहीं लिया? तो 1 + 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 डिजिट का आंसर होगा। तो दैट मीन आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटीज कितनी बना पाओगे आप? 2 की पावर 2। पर अगर हम यहां पे क्या लेते हैं 4 2 1, तो 2's पावर 3, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, आंसर्स के कॉम्बिनेशन बनाने के ऑप्शंस ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने 4 2 1 को कंसीडर किया है। अब आप इससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा लीजिए, कर देगा। लाइक हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि कितने लेवल तक ये सही आंसर देगा। लाइक आपने ले लिया 65 जो कि क्या है ऑक्टल में, और आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका डेसिमल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए 4 2 1 जो आपने लिखा है इसमें आपको 6 निकालना है, 6 बनाना है। 6 कैसे बनेगा? 4 + 2 को ऐड करके। तो जिन जिन एलिमेंट्स को आपको यूज करना है, ठीक है, यहां पे गौर कीजिएगा, जिन जिन एलिमेंट को 6 को बनाने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी है? 4 और 2 की। तो जिन जिन को आपको यूज करना है उन एलिमेंट्स के नीचे आप 1 लिख दीजिए, रिमेनिंग के आगे 0। तो जो जहां पे मैंने 0 कंसीडर किया हुआ है दैट मीन वो एलिमेंट मैं यूज नहीं करूंगा, और इन 2 एलिमेंट को यूज करके 6 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 आप कैसे बनाएंगे? 4 और 1 को यूज करके। दैट मीन आप 0 2 को यूज नहीं करना चाहेंगे, तो आपने यहां क्या लगा दिया? 4 के आगे और 1 के आगे
1 1, दैट मीन आप इनको यूज करना चाहते हैं। तो आंसर आप लोगों का क्या बना, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो 1 1 0 1 0 1, दैट इज अवर आंसर इन द डेसिमल, इन द बाइनरी, सॉरी। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी के लिए। तो ये एक आपका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। अच्छा, प्रॉब्लम भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कन्वर्जन करने के कितने टेक्निक्स हैं। देखिए नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, बाइनरी, ऑक्टल, ठीक है, डेसिमल, हेक्सा और डेसिमल। अब कुछ इश्यूज हैं जो हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, जो हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, जो हम लोगों को यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। लाइक मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे, अगर नंबर सिस्टम की ही बात करते हैं तो फिर से मैं बात कर रहा हूं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। ठीक है, देखिए बाइनरी से डेसिमल पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल पे आप जा सकते हैं, डेसिमल से हेक्सा पे जा सकते हैं। पर अगर आपसे बोला जाए कि आपको क्या निकालना है, बाइनरी से हेक्सा पे आना है, डायरेक्टली नहीं आ सकते हो आप। पहले बाइनरी से क्या कैलकुलेट होगा, डेसिमल, और डेसिमल से क्या होगा, हेक्सा। सिमिलरली हेक्सा से बाइनरी पे जाना है तो भी इस तरह से। अगर आपको बाइनरी से क्या निकालना है, ऑक्टल, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मीडिएटर के तौर पे डेसिमल को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो शॉर्टकट है, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको नंबर सिस्टम में बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी पे जाना है तो हम शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं। और पहली जो शॉर्टकट की होती है वो होती है 4 2 1। इज दैट क्लियर? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज आपको कोई नंबर दिया जाता है, लाइक आपको कोई नंबर दिया गया 1010, दैट इज इन बाइनरी, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना है, ऑक्टल। नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले 1010 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द डेसिमल। सेकेंड स्टेप, जो भी आपका डेसिमल आएगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, ऑक्टल में। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी है, इसका ही तो हम सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं 4 2 1। इज दैट क्लियर? चलिए बात करते हैं हम लोग वापस से बाइनरी टू हेक्सा के लिए भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग दो शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। द फर्स्ट शॉर्टकट इज फॉर बाइनरी टू octal and the shortcut is 4 2 1. By using, we can convert binary to octal or octal to binary. Similarly, binary to hexa. For that, we have 8 4 2 1. आप बोलेंगे ये क्यों लिखा आपने, 8 plus 4 12 plus 2 12 plus 2 14 plus 1 15, because in the hexadecimal we just have 15 0 to 15 values. मैं आपको फिर से प्रूव कर देता हूं कि किस बेसिस पे मैं ये चीजें बोल रहा हूं। आप गौर कीजिएगा, हेक्साडेसिमल में 0 से f तक था और f को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप डेसिमल में 15 से। दैट्स वाई हम लोगों ने वहां पे जो शॉर्टकट यूज किया है वो क्या यूज किया है, 8 4 2 1। अब इनको यूज कैसे करने वाले हैं हम उसके लिए बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि कुछ टिपिकल भी होंगे और कुछ सिंपल भी होंगे। लाइक कंसीडर द एग्जांपल, लाइक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पे डिस्कशन के लिए बात करता हूं कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास 1 0 1 0 1। आपके पास ये क्वेश्चन है जो कि आपका बाइनरी में है और आपको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप लोग सबसे पहले चेक कीजिए कि आपको कितने पेयर बनाने, कितने डिजिट्स का आंसर बन सकता है ऑक्टल में, 3 डिजिट का एट ए टाइम पे। तो आप सबसे पहले यहां पे क्या कोशिश कीजिए कि जो आपका नंबर है उसमें कितने पेयर्स हैं और पेयर राइट टू लेफ्ट आपको करने हैं। तो आप लोगों ने ये जो नंबर सिस्टम था इसमें कितने पेयर बना, फर्स्ट पेयर। अब सेकेंड पेयर तो है ही नहीं, तो आप अपनी तरफ से यहां पे एक 0 एज्यूम्शन कर सकते हैं। तो मैं इसी नंबर को कुछ ऐसे अगर लिख दूं 1 0 1, दैट इज द फर्स्ट पेयर, 0 1 एंड 0।
ये एक जीरो। याद रखिएगा बाइनरी में अगर आप लेफ्ट साइड पे कितने भी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर राइट साइड पे जीरो आप नहीं लगाएंगे। इसलिए हमने पेयर कहां से बनाने चालू करें, राइट साइड से। तो आपने राइट साइड से पहला पेयर बनाया, नेक्स्ट पेयर में आपको वैल्यूज कम पड़ रही थी क्योंकि 3 का पेयर बनाना था, तो आपने अपनी तरफ से क्या लगा दिया, जीरो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप 4 2 1 की हेल्प लीजिए। ये आपका 4, ये आपका 2, ये 1। पहला पेयर आप लोगों ने यूज किया 0 1 0। आप देखेंगे मैंने अभी हाल आपको बताया था जिनके नीचे 1 आ रहा है उसको वैल्यू का आप कंसीडर करेंगे। तो आपके पास यहां 1 कहां पे आ रहा है, 2 पे, तो आपने 2 को कंसीडर कर लिया। अगली वैल्यू आप लोगों ने यहां पे लिखी 1 0 1। किन किन के नीचे आगे आपके पास 1 आ रहा है, 4 के नीचे और 1 के नीचे, तो 4 + 1 = 5। तो आपका जो आंसर बना, पहले इस पेयर की वैल्यू मतलब 2 और देन सेकंड पेयर की वैल्यू मतलब 5। द आंसर इज 25। और ये आंसर किस में आया है आपका, ऑक्टल में। इज इट क्लियर? हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। बात करते हैं हम लोग और फर्दर एग्जांपल्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट पे हम लोग बाद में जाते हैं, पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल्स क्या क्या हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आप कोई और एग्जांपल, कोई और वैल्यू ले लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा कोई वैल्यू है आपके पास, और आपको इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना है, ऑक्टल। कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट पेयर एंड दैट इज अवर सेकंड पेयर। यूज दीज वैल्यूज 1 1 0 1 0 1। 4 + 2 = 6, बिकॉज हम लोगों ने इनका एडिशन यूज किया। अगला 1 दैट इज 4 एंड दैट इज 1 5। सो द वैल्यू ऑफ योर आंसर इज, इस पेयर का वैल्यू क्या था 6, सेकेंड पेयर का वैल्यू क्या था 5, दैट इज 65। सो क्वेश्चन सिंपल्स हैं बट थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल का भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको कोई वैल्यू यहां पे अवेलेबल कराई गई, यहां पे पेयर कितने का बनेगा, हेक्साडेसिमल में पेयर बनेंगे 4 के। वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1 0 1 0, दैट इज इन बाइनरी एंड आई हैव टू फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। तो 1 0 1 0, आप जब इनको यूज करेंगे तो 1 है 8 के बाद और 2 के बाद, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो द वैल्यू इन द हेक्साडेसिमल इज 10। इज इट क्लियर? तो टॉपिक सिंपल हैं बट हम लोगों को इस पे थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स पे वर्क करना पड़ेगा। बट दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउ मेनी नंबर सिस्टम्स वी हैव, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और आप कितने कन्वर्जन कर पाएंगे, मैं आपको फिर से बताता हूं कि हम लोगों के पास कन्वर्जन करने के कितने टेक्निक्स हैं। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, दैट इज 2, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, दैट इज 2, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, दैट इज 2 6, और इनके वाइस वर्सा। तो दैट इज 12 कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि जब आपके पास 12 कॉम्बिनेशंस होते हैं तो कंफ्यूजन्स भी होते हैं। सो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।